plant, its structure, and about its functions. Yeah. Okay. So first of all, I guess we all have seen flowers, and we have seen flowers on big, small, or mediate sized plants, right? Yeah, we have plants at our home like money plant or like rose plant, yeah, or marigold plant. These are the common plants that we usually see, right? Okay, so in today's session, we will learn about the plant and its structure, right? For that, we have two parts. We have divided the plant into two parts, right? The first one is the root system, and the second one is the shoot system, right? Okay, so let's see what we have today in our box, which we have to disclose, right? Okay, so the first is we will learn about the root. Yeah, so the root or जड़, it is basically known as जड़. तो पहला पार्ट जो प्लांट का होता है वो जमीन के अंदर है, यानी कि जड़ है, और जो जमीन के बाहर है वो शूट है. यस, जमीन के अंदर वाला पार्ट रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर वाला पार्ट शूट सिस्टम. या ओके, देन अलोंग विथ रूट एंड शूट, इन दोनों के साथ ही हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और important part होता है known as leaves, right? Okay, so we will learn about the leaves as well. Then we will move further towards the most fascinating part, right? Like the most beautiful part of a plant, that is flower. We will learn about flower. Yeah, okay. Flower, what is flower and what are its parts? Yeah, how the pollination, that is transfer of flowers occur. Yeah, and then fertilization. How is your favorite fruit is born, or how are the seeds travel from one place to another, right? Okay, so let's get started from the parts of the plant. Yeah, okay, here it is visible. Here the picture of a plant is visible, right? There are it is a small plant, and it is divided into subdivided into two parts. Yeah, सो ये पूरा प्लांट जो है आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं. यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है ये जमीन के अंदर है, या ये जमीन के अंदर है, तो इसको क्या कहा जाएगा? रूट्स. या ये रूट्स है, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाएगा रूट सिस्टम. या ओके, सो जो पार्ट जमीन के ऊपर होता है उसको कहते हैं शूट. whether it is stem or leaf, all are considered to be the part of shoot system. Yes, okay, so the leaf and the stem both are together collectively known as shoot system. And flower as well, flower is also the part of shoot system. तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो रूट्स होती हैं वो रूट सिस्टम में आती हैं, और जो शूट होती है उसमें लीव्स आती हैं, स्टेम आती है, और फ्लावर आते हैं, या बर्ड्स आती हैं, right? Now we will study broadly about the parts, right? Okay, so here we can see the roots. Yes, so it is a kind of tap root. Main root is there, yeah, and branch roots, that is branches of the roots are present. Now we have here nodes present, and the distance between two nodes is known as internodes. We will read about it further, right? Here a fruit is also present, a flower present, leaves present, leaf stalk is present, leaf blade is present. These all are considered to be the part of a plant, right? Okay, so we will move further and we will learn about the basic part, that is the root system. Yeah, okay, so the underground part of a plant is known as root system, right? Yeah, so the root system, it lies below the ground. या जमीन के अंदर के हिस्से को हम लोग रूट कंसिडर करते हैं. ठीक है, ओके. रूट में ना तो लीव्स होती हैं, ना फ्लावर्स होते हैं, और ना ही फ्रूट्स होते हैं. ठीक है, और वो उसके बड्स भी नहीं होते हैं. यस, ओके. सो बेसिकली रूट जो होती है एक प्राइमरी थिक रूट उसकी होती है, प्राइमरी
रूट निकलती है जिसकी पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन में ब्रांचेस होती हैं, साइड ब्रांचेस होती हैं, ठीक। अब ये इसमें विजिबल होगा इस पिक्चर में, ये देखिए कि रूट्स, जो साइड से रूट्स निकल रही हैं, साइड रूट्स, इसमें छोटे 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 हेयर्स टाइप है, इनको कहते हैं रूट हेयर्स, राइट। ओके, और इन पूरे को मिलाकर इस पूरे सिस्टम को, दैट इज द प्राइमरी रूट, द साइड रूट्स एंड द रूट हेयर्स, ऑल कंप्राइजेस ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है। और एक और मेजर पॉइंट है इसमें कि ये जो रूट होती है ये जमीन के अंदर ग्रो करती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, राइट। ये जमीन के बाहर नहीं ग्रो करती है, ये बेसिकली जो होती है, सब वो हो सकते हैं लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शंस, बट बेसिकली ये जो रूट होती है ये जमीन के अंदर ही मिलती है, राइट। ओके, नाउ वी हैव two types of root system. Yes, the one is the tap root system and the second one is the fibrous root system. Yes, okay. So in the tap root system, we can see that there is a main branch of root. Yes, a thick main branch of root. From it, various lateral branches, यानी कि साइड ब्रांचेस अराइज हो रही हैं। एक हमारे पास मेन में रूट है, उससे हमारे पास साइड में रूट इमर्ज हो रही है, राइज हो रही है, ठीक है। ये जो रूट सिस्टम है ये क्या कहलाता है? टैप रूट सिस्टम, राइट। वन प्राइमरी रूट, अदर सेकेंडरी रूट्स। यस, बेसिकली ये जो फीचर है ये डाइकॉट प्लांट्स का होता है, लाइक ग्राम, पी, रोज, सनफ्लावर, ऑल आर dicot plants, right? Okay, not sunflower. Okay, okay. Now what about fibrous root? Here in the picture it is visible that there is no such main root. यहाँ पे हमको कोई मेन रूट नहीं दिखाई दे रही है, सब एक बंच में बनी हुई है रूट्स और इधर उधर फैल रही हैं। Yes, so this kind of structure is known as fibrous root. Yeah, it is basically function of monocots root, monocot plants, right? For example, maize. Yeah, okay. So besides these two roots, that is tap root system and fibrous root system, we have two other root system also. The one is true and adventitious. But before moving towards that root system, let us quick revise what we have learned, right? Okay, so we have learned that the underground portion of a plant is known as root system. जमीन के अंदर का पोर्शन क्या कहलाता है? रूट सिस्टम कहलाता है। रूट्स जो होती है वो नॉन ग्रीन कलर की होती है, वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, दे आर नॉन ग्रीन इन कलर। सेकेंडली हमने क्या सीखा कि उसमें ना लीफ होती है, ना फ्लावर होती है, ना बड होती है, राइट। रूट्स नीदर कंटेन्स लीव्स नॉर बर्ड्स नॉर फ्लावर्स, राइट। ओके, फिर हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं। यस यस, ओके, दे ग्रो डाउनवर्ड्स इनसाइड द ग्राउंड, राइट। Okay, now next what we have learned is that the root has main root, that is main single root. From that branches arise, side roots arise, and side roots have hairs on it known as root hairs. एक सिंगल मेन ब्रांच होती है जिससे साइड वाइज में छोटी छोटी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं, उनमें रूट हेयर्स होते हैं, और ये पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं रूट सिस्टम, राइट। ओके, देन वी हैव लर्न कि रूट सिस्टम भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक टैप रूट सिस्टम और एक फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम में हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि जो टैप रूट होती है उसमें एक प्राइमरी रूट होती है, उससे जो होती है वो साइड ब्रांचेस यानी कि सेकेंडरी रूट्स अराइज होती हैं, ठीक है, और ये डाइकॉट प्लांट में पाई जाती हैं। ऑन द अदर हैंड फाइब्रस रूट में बंच ऑफ रूट्स प्रेजेंट होता है और इसमें मेन रूट जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है, क्लस्टर होता है रूट्स का, और ये मोनोकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं, राइट। ओके, नाउ व्हाट अबाउट ट्रू रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स? ओके, सो in the emergence of roots, the part that develops
is radicle, right? Roots arise from the radicle of the germinating seed. The seed has two parts, right? Seed has two parts. Let me show you. Wait for a while. Let me show you the part of the seeds as well. Okay. Yeah. Oh yeah, this is the seed. Okay. Seeds is something that contains a baby plant in. Seed में एक छोटा सा baby plant पाया जाता है, right? उस baby plant के दो part होते हैं. एक रेडिकल कहलाता है और एक प्लोम्यूल कहलाता है. तो जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से ग्रो करती है, राइट, फ्रॉम द रेडिकल. और जो शूट होती है वो प्लोम्यूल से ग्रो करती है, राइट. ओके, so the roots that develop from the radical part are known as true roots. यानी कि जो रूट्स इसी रेडिकल पार्ट से ग्रो करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रू रूट्स. यस, ट्रू रूट्स. तो ज्यादातर रूट्स ट्रू रूट्स ही हुई फिर. यस. और जो बाकी रूट्स होती है, जैसे बनियन ट्री हम लोगों ने देखा होगा, बनियन का पेड़, उसमें रूट्स हमने लटकती हुई देखी होंगी, है ना? वो भी रूट्स होती है, जो लटकती रस्सियों जैसी लगती है, वो भी रूट्स होती है. लेकिन वो रूट्स रेडिकल से नहीं इमर्ज होती हैं, वो स्टेम या फिर उस स्टेम से इमर्ज होती है. और कभी कभी रूट्स लीव्स में भी निकल आती हैं. तो ऐसी रूट, जैसे ब्रायोफाइलम है, उसकी जो रूट्स होती हैं वो लीफ से निकलती हैं. तो ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स, राइट. ओके. ओके, सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. अब रूट का काम क्या होता है? बेसिकली प्लांट के लिए वाटर और मिनरल्स को इकट्ठा करना, राइट. ओके. सेकेंड काम क्या होता है? वो सपोर्ट भी करती हैं प्लांट को, कि अंदर जड़ें एकदम मजबूती से सॉइल को पकड़ लेती हैं, तभी तो पेड़ जो है ऊपर उठ के इतना बड़ा सा हो जाता है. अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो पेड़ गिर नहीं जाएगा, है ना. यानी कि मान के चलिए, अगर आपका बेसिक्स ही नहीं क्लियर होगा, बेसिक्स ही नहीं अच्छा है, आपको पकड़ ही नहीं है सब्जेक्ट की, तो आप ऊंचे ऊंचे सब्जेक्ट कैसे पढ़ पाएंगे? गिर नहीं जाएंगे. यस. सो द रूट का बेसिक काम क्या होता है? मिनरल और वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाना. और दूसरा क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना. यस. ओके. इसके अलावा भी रूट्स जो होती हैं वो एक काम करती हैं, दैट इज स्टोरेज. स्टोरेज ऑफ फूड, राइट. और सिर्फ नीचे से नहीं, कुछ जड़ें ऐसी भी होती हैं जो बाहर निकलकर भी प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट. ओके, सो वी हैव हियर सम रूट्स दैट आर बेसिकली important or used for the storage of food, right? Yes. Okay, so the first one is the turnip शलजम. Yes, शलजम जो होता है वो एक रूट होता है. Turnip is a root, a round root that is used to store food. Yes. Carrot, gajar, conical root. Radish, it is also a root, fusiform root, right? Spindle-like root. Then we have nodulous roots. Like nodules में roots होती है, उसमें छोटे 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 गांठ जैसे पाए जाते हैं, राइट. जैसे आपकी हल्दी है, हल्दी में नोडुलस गांठ जैसी मिलती है आपको हल्दी. यस. ओके. नाउ फेसिकुलेटेड रूट्स. इसमें क्या होता है? जो रूट्स होती हैं वो बंडल में होती हैं. यस. फॉर एग्जाम्पल डहेलिया. यस. एस्पेरेगस. और एक और चीज जानने को होती है, जो हम लोग जिमीकंद, शकरकंद सॉरी खाते हैं, नॉट जिमीकंद, शकरकंद जो खाते हैं वो भी एक रूट होती है. शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो, नॉट पोटैटो. पोटैटो एक्चुअली स्टेम है, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, राइट. हियर यू कैन सी एरो रूट, टर्मरिक एरो रूट. हियर इज अ नोड्यूल लाइक structure present on the roots, right? It is used for the storage of food. This is a picture of sweet potato. And fasciculated roots, that is the roots arranged in bundles. Yeah. Okay, now for the additional support, some of the roots, they grow vertically downwards from the aerial part, right? Yes. For example, here you can see in banyan tree, here the roots are emerging downwards from the branch. Yes. Now these roots, they गुच्छा टाइप का एक रूट्स का होता है ना, कि इनको पकड़ो तो खींचो तो प्लांट जो होता है
वो हिलता नहीं है। तो ये जो रूट्स है एडिशनल सपोर्ट, मतलब एक पक्की तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं कि हम जो है अपने पेड़ को गिरने नहीं देंगे। यस, ओके। नाउ व्हाट अबाउट स्टिल्ट रूट्स? What about stilt roots? And such kind of roots present in banyan trees are known as prop roots, right? जब ये ग्राउंड को टच करेंगी तो ये अंदर की तरफ सॉइल की तरफ ग्रो करेंगी, ठीक है? यस। देखो सम जो प्लांट होते हैं, जो वीक प्लांट होते हैं, जैसे शुगर केन हुआ और जैसे वीट हुआ, मेज हुआ, इनमें कभी कभी देखा जाता है कि जड़ें निकल आती हैं। लुक हियर, the stilt roots are present in the nodes and internodes. गन्ने में छोटी छोटी बीच में जड़ें प्रेजेंट होती हैं, इन्हीं जड़ों को कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसी प्लांट को, राइट? ओके। ना क्लाइंबिंग रूट्स जैसे मनी प्लांट में होता है। मनी प्लांट जो होता है उसमें आपने देखा होगा बेल जो है पेड़ से लगकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है, दीवार से लगकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है, राइट? यस। तो जो इनकी रूट्स होती हैं वो नोड्स या इंटरनोड्स में प्रेजेंट होती हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, राइट? ओके, नाउ अदर देन दैट, these kind of function, that is support function and storage of food, the other function of roots are, that is nitrogen fixing roots. Yes, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लाइक जैसे कि पल्सेस हुआ या फिर ग्राम पी, जो पल्सेस होते हैं बेसिकली उनकी रूट्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। नोड्यूल्स मतलब गांठ टाइप का गोल गोल डेवलप हो जाता है। इस गांठ में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम जो खाना खाते हैं, हम कच्चा चावल नहीं खा सकते, कि खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हम कच्ची दाल नहीं खा सकते, राइट? तो जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है? तो वो भी कच्ची नाइट्रोजन नहीं खा सकते ना, उनको भी नाइट्रोजन को किसी फॉर्म में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट? तो ये काम जो करते हैं वो नोड्यूल्स में प्रेजेंट बैक्टीरिया करते हैं। अब जब नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, सॉइल में लाएंगे, कोई चीज न्यूट्रिएंट डालेंगे, नाइट्रोजन इज अ न्यूट्रिएंट एज वेल फॉर द सॉइल, राइट? So when this nitrogen is given to the soil, the fertility of the soil is increased. Yes, so these nodules helps to increase the fertility of the soil. Yeah, okay. Now breathing roots or pneumatophores, right. Okay, here you can see some marshy areas. दलदल के जो एरियाज होते हैं वहां पे जो रूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, लाइक सी माय एरो, इट इज this type of roots ऊपर की तरफ grow कर रही हैं. You can see here, these are the breathing roots. They contain some pores in them that help the plant to breathe, right? Because दलदल जो होता है एक ऐसा एरिया होता है, बहुत ही घिचपिचा एरिया होता है, उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, तो रूट्स जो प्लांट्स की होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करने लग जाती हैं, जस्ट टू रेस्पायर, ये सांस लेने के लिए, राइट? ओके, नाउ द एरियल रूट्स, राइट? एरियल रूट्स जो होती है इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है किसी भी पेड़ से लग के ये उस पेड़ का मॉइस्चर खींचती हैं अपने लिए, राइट? ओके, नाउ व्हाट अबाउट द सकिंग रूट्स? ये पैरासाइट की तरह काम करती हैं, ये किसी होस्ट प्लांट पे जाती हैं, उससे चिपक जाती हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और पानी सब गेन करती हैं अपने प्लांट के लिए। ओ सॉरी, ऑर्चिड्स की जो लीफ होती है, रूट्स होती हैं, वो ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं मॉइस्चर गेन करने के लिए। दे डोंट एक्ट एज पैरासाइट, राइट? ओके, सो व्हाट टिल नाउ व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट, ओके, सकिंग रूट्स में हॉस्टेरिया और कस्कटा का एग्जांपल याद रखना, एरियल रूट्स में ऑर्किड्स का एग्जांपल याद रखना, राइट? ओके, नाउ till now we have learned about the root system, right? What we have learned is that there are basically two parts of a plant. The one is the root system and the second one is the shoot system. Yes,
Going towards the root system, what we have learned is that the underground part of the root plant is known as root. जमीन के अंदर के पोर्शन को हम लोग रूट कहते हैं. रूट्स जो होती हैं वो नॉन ग्रीन कलर की होती हैं. दे आर नॉन ग्रीन इन फंक्शन कलर, राइट. दे डोंट बियर लीव्स, flowers or stem, right? Okay, they grow downwards inside the soil. Okay, so the root contains a primary root from where secondary roots arises. These secondary roots contain root hairs on it. The whole system is known as root system, right? Okay, then we have two types of root system. One is the tap root system and second one is the shoot, fibrous root system. Now what about the tap root system is that the tap root has one main branch of roots from where secondary roots arises, right? Okay, now in the and these kind of roots are found in dicot plants. Yes. Okay, now what about fibrous root system? The bunch or tuft of roots arises from the base of the plant. They do not contain the system of primary or secondary roots. Yes, and these roots are found in dicot plants. Okay. Okay, then we have two other kinds of root also with us. That is, one is true roots and the second one is adventitious roots. The true roots emerge from the radical part of the germinating seeds. Yes, radical part से germinate होने वाली roots को कहते हैं true roots. और other than radical, that is stem, leaf से germinate होने वाली roots को कहते हैं adventitious roots. ठीक है? Okay. Now what about the functions of roots or modifications of root? कुछ root जो होती हैं वो अपने आप को modify कर लेती हैं. Yes, the basic function of root is to fix the plant in the soil. Yes, and absorb water and minerals from the soil. Yes, but कुछ root जो होती है वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, मॉडिफाई कर लेती है. किस लिए? फूड को स्टोर करने के लिए और एडिशनल सपोर्ट देने के लिए. प्लांट को फूड को स्टोर करने के लिए टर्मरिक, जैसे टर्मरिक नोड्यूल शेप होता है. यस, और कोनिकल में रेडिश आ गई, और आपकी सर्कल में मतलब सर्कुलर में आपका राउंड शेप में टर्निप आ गया. देन फूसीफॉर्म में कैरेट आ गई, है ना. फिर उसके में ये आ गया. ठीक है. फिर कुछ रूट्स जो होती हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ऊपर से, जैसे कि प्रॉप रूट्स बैनियन ट्री में पाई जाती हैं, क्लाइंबिंग में पाई जाती हैं, मनी प्लांट वगैरह में, है ना. फिर आपकी आ जाती हैं कुछ स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड करने वाली रूट्स, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स, जो हमको दाल वगैरह की जड़ों में मिलते हैं. बैक्टीरिया नोड्यूल्स बनाकर वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. फिर आपकी आती हैं ये स्टिल्ट रूट्स, राइट. न्यूमेटोफोर्स, या सॉरी न्यूमेटोफोर्स आती हैं. हियर द पिक्चर ऑफ न्यूमेटोफोर्स, सॉरी. ये न्यूमेटोफोर्स आती हैं जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करके एयर गैदर करती है प्लांट के लिए. देन फिर आपकी आती है ऑर्किड्स की एरियल रूट, जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी और प्लांट के लिए मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करेंगी सराउंडिंग से. फिर आपकी पैरासिटिक रूट्स आती हैं जो कि दूसरे पेड़ से चिपक कर उसका न्यूट्रिएंट और उसका खाना पीना और पानी जो भी कुछ है सब ले लेती है, राइट. सो एज अ समरी व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट root is the underground portion of the plant and it has functions like it fixes the plant in the soil, it absorbs water and minerals from the soil, it acts as storage part for food and materials, and then it binds the soil together so that it does not get washed away during rain or blown away by the wind, thus it prevents soil erosion, right. Okay. Okay, now the next part is the shoot system. Yes. Okay, so the shoot system basically consists of stem, leaves, buds, flowers and fruits. All of the things comes under the shoot system, right. So let's move further towards the first topic, that is the stem. Okay. Okay, so kids, stem is the first main aerial part of the shoot system, right. From here, from the stem itself, leaves arises.
स्टेम से ही लीव्स अराइज होती हैं, फ्लावर अराइज होते हैं और बर्ड्स अराइज होती हैं। तो बेसिकली जो मेन पार्ट, एरियल पार्ट होता है वो होता है स्टेम, राइट? ओके, ना जब स्टेम, नाउ कंसिडर जस्ट कि स्टेम पे, या स्टेम पे जहां जिस पार्ट से रूट्स अराइज हो रही हैं या फिर सॉरी लीव्स अराइज हो रही हैं और ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, उस पार्ट को कहते हैं नोड। या ओके, लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ अ नोड. Yes, here it is. Is it visible? Yes, it is visible. Okay, so now just look at this part. From here the leaves are arising, so this part is known as node. Yeah, from here leaves is arising, from here leaves is arising, here leaves is arising, so this part is known as node. ठीक है? Okay, तो दो नोड के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं इंटरनोड. या ओके, नोड वो पोर्शन है जहां से लीव्स और फ्लावर अराइज होते हैं, ठीक है? और दो नोड के बीच की जगह को कहते हैं हम लोग इंटरनोड. यस, समझे? ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इज द नोड इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स एंड फ्लावर्स अराइजेस, and the part of the stem between two nodes is known as internode, right? Okay, now just think of it कि एक लंबी सी रूट निकल रही है और यहाँ पे एक छोटा सा बड है. यस, बड, बुड्ढी, जिससे फ्लावर ग्रो होता है, राइट? सो बड इज नथिंग बट एन अनडेवलप्ड शूट प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम, राइट? ओके, सो अगर ये बड जो है बिल्कुल स्टेम की टिप पर प्रेजेंट हो तो इसको कहते हैं एपिकल बड और टर्मिनल बड. यस, और अगर किनारे प्रेजेंट हो तो इसको कहते हैं एक्सिलरी बड, यानी कि ये एक्सिल पे प्रेजेंट है. एक्सिल इज समथिंग, दिस इज लीफ, ओके, एंड दिस इज स्टेम. द प्लेस बिटवीन लीव्स, stalk and stem is known as axil, right? Here you can see leaf and stem के बीच की जो जगह होती है उसको axil कहते हैं, और यहां से जो बड निकलती है उसको कहते हैं axillary buds. Yes, okay, okay, now we will learn about some modifications of stem. Stem का क्या काम होता है? प्लांट को एकदम सीधा खड़े करने का, है ना? और जो भी खाना, जो भी मिनरल्स, जैसे खाना लीफ बनाती है तो उसको दूसरे पार्ट में पहुंचाना, या रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है तो एक कंडक्टिंग पाथ तैयार करता है आपका स्टेम, राइट? बिसाइड्स दीज, इनमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं कि भैया हम भी कुछ अच्छे से मॉडिफाई हो जाएं ताकि हम अपने पेड़ को और भी ज्यादा मतलब अपनी इंपॉर्टेंस दिखा पाए, है ना? समझ? तो स्टेम तीन तरीके से मॉडिफाई होती है. फर्स्ट इज अंडरग्राउंड मॉडिफाई हो जाती है, लेकिन सेकंड इज सब एरियल मॉडिफाई हो जाती है, एंड द थर्ड वन इज एरियल मॉडिफिकेशन, राइट? ओके, सो द अंडरग्राउंड स्टेम जो होती है वो फूड को बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में स्टोर करती है. यस, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबर. ट्यूबर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप अपने घर में देखना चाहते हैं तो पोटैटो को देखिए. पोटैटो जो होता है वो एक एग्जाम्पल होता है ट्यूबर का. इसमें छोटे छोटे आईज प्रेजेंट होती हैं. यस, इन्हीं आईज जो होती हैं इन्हीं से छोटे से शूट भी निकल सकते हैं अगर हम लोग पोटैटो को जमीन में लगा दें. पोटैटो स्वेल हो जाता है फूड को स्टोर करने के लिए. तो बेसिकली जो हम पोटैटो खाते हैं या फिर आलू खाते हैं वो प्लांट का खाना होता है. यस, और वो खाना कौन स्टोर करता है? पोटैटो. और पोटैटो क्या होती है? एक स्टेम होती है, राइट? ओके, ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज द राइजोम. राइजोम इरेगुलरली शेप होती है और ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है. दिस वन इज नोन एज वर्टिकल ग्रोथ, बट जो राइजोम होती है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है इस तरीके से, लंबे लंबे में, लेटे लेटे में, राइट? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द एग्जाम्पल ऑफ इट इज जिंजर, राइट? हियर जो छोटे छोटे जिंजर पे धब्बे जैसे पड़ते हैं वो उसका नोड होता है जहां से एक नया जिंजर प्लांट हम उगा सकते हैं, राइट? ओके,
Then we have bulb. You can see here the onion bulb, right? ये जो नीचे अनियन के नीचे आप सफेद सफेद सा पट्टा देखते हैं, राइट? That is the stem of the onion. Yes, disc shaped stem. उसी में से जड़ें निकलती हैं, और ये जो आप अनियन का पार्ट खाते हैं ये उसकी लीव्स होती है, फ्लेशी स्केल लीव्स, राइट? जिनका काम होता है फूड स्टोर करना. यस, ओके. और जो बाहर से छिलका निकलता है वो भी लीफ होती है, लेकिन उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना. या देन वी हैव कॉर्म विद अस, राइट? कॉर्म इज समवॉट flattened like structure, flattened, round and condensed structure. Can you see here? Okay, see. For example, Jimmycan, gladiolus. These are all examples of modified stem only. Yeah. Okay. Now next we will move about subaerial modifications. That is half underground and half below the half underground and some half above the surface of the soil. Yes. Okay. The first example is the runner. It runs. It is a small, thin, slender branch. It creeps on the ground and it has roots on it. Then we have stolon. It grows upward above the ground, right? जो ये रनर है ये सीधा 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 जमीन पे चलता चला जा रहा है, ठीक है? और जो ये स्टोलोन है वो कुछ समय तक ग्राउंड पे अपवर्ड ग्रो करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, कुछ समय तक फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, राइट? ओके. ओके, देन वी हैव ऑफसेट्स. ऑफसेट्स बेसिकली जो होते हैं वो रनर की तरह ही होते हैं, लेकिन ये एक्वाटिक प्लांट्स में पाए जाते हैं. क्या? ओके. नाउ वी हैव एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट. मतलब कि जो पूरी एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, मतलब कि जो पूरी तरीके से एरियल हो, यानी कि जमीन के बाहर हो, राइट? ओके. तो ये वाले जो होते हैं ये फूड का भी स्टोरेज कर सकते हैं, ये सपोर्ट भी दे सकते हैं, यस, और ये बेसिकली प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं. या इनका मेन एग्जांपल आप टेंड्रिल्स ले सकते हो. द स्टेम tendrils. Here is the tendril. Yeah, can you see the picture of a tendril? Yeah. तो ये जो tendril होते हैं ये modified form of stem होते हैं किसी दूसरे plant से bind up करने के लिए. Yes. Okay. Then we have thorns with us. Thorns भी एक तरीके से modification of stem ही होता है. इनमें क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट को टच करता है तो ये उसके लग जाते हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. देन वी हैव ट्विनर विद अस. ट्विनर का काम होता है कि किसी दूसरी स्टेम को या फिर खुद की स्टेम को, ट्विनर क्लाइंबर नहीं, ट्विनर का ये काम होता है कि जैसे अपना प्लांट है, राइट, वो अपनी ही स्टेम के किनारे किनारे दूसरी स्टेम को गोल 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 क्लाइंब कर लेता है ताकि वो ऊपर की तरफ बढ़े. यस. देन वी हैव फाइलोक्लेड. इट इज द मोस्ट क्या कहते हैं कि इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ स्टेम. ये जो आप कैक्टस प्लांट देख रहे हो इधर, ओपनशिया है, सॉरी, ये जो प्लांट देख रहे हो आप, इसकी जो ग्रीन 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 दिख रही है ये लीव्स नहीं है, ये स्टेम है. स्टेम जो होता है वो फ्लैट और थिक हो जाता है. ये नोड्स हैं जहां से ये देखो थॉर्न निकलना है, स्पाइन्स निकलना है, सॉरी, ये देखो, है ना? तो ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है जो थिक और फ्लैटेंड हो गया है ताकि लॉस ना हो किसका, वाटर का. इसी पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं फाइलोक्लेड और ये प्रेजेंट होता है ओपनशिया में, राइट? ओके. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टेम? क्या क्या देखा हमने? तो स्टेम क्या होती है? द पोर्शन ऑफ द प्लांट दैट इज प्रेजेंट अबव द सॉइल इज नोन एज stem, right? It contains leaves, fruits, flowers, birds, everything that is present above the soil. Yeah. Okay. Now the shoot system is further
modified into various kinds, right? Like rhizome, tuber, creeper, tweener, thorns. Yeah. Okay. So the functions of the root is to bear all the aerial parts of the plant, right? Stem helps in the upward movement of water and minerals, क्योंकि वो सीधी खड़ी होती है तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है. जो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स के द्वारा वो भी जो है स्टेम इधर से उधर कंडक्ट करती है. और कभी कभी जो स्टेम ग्रीन होती है तो वो अपना खाना भी खुद बना लेती है. यस. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द रूट एंड द stem, right? Okay, then we have here the next most important part, that is the leaf. Yes. Okay, we will learn about this part in the next video. Till then